Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Moving by Robert Frost. So Robert Frost was an American poet who was born on 26th March 1874 and he died on 29th January 1963. And this particular poem, it was published in his collection A Boy's Will in 1913. So before I start the video, those who are watching my channel, please do subscribe my channel. Okay, so first let me tell you what is the meaning of the word mowing. Mowing means cutting of grasses. That you must have seen the lawn mowers that we use today. So these mowers are used to cut the grass in the fields or in the park and all those things. So here this particular poem is about mowing, that how a farmer, he is cutting the grass. And at that time, when this poem was written, at that time the advanced technology lawn mowers were not there. So it was the old-fashioned lawn mowers that farmers, they used to cut the grasses from the field. So this particular poem is a very beautiful and short poem, that how a farmer, he is cutting the grasses, and what is the mower trying to say. So let's see. There was never a sound beside the wood but one. So here the speaker is a farmer. जो ये poem का speaker है वो एक farmer है. तो वो farmer बोल रहा है, There was never a sound beside the wood but one. वो जहाँ पे woods में, वो जहाँ पे काम कर रहा था, वहाँ पे कोई भी sound नहीं था. कोई भी sound वहाँ से नहीं आ रहा था जहाँ पे वो काम कर रहा था. But one, वहाँ पे कोई sound नहीं था सिवाय एक साउंड के. और वो साउंड कौन सा था? And that was my long Sith whispering to the ground. And that was the long Sith. What is Sith? Sith is a old lawn mower. जो पुराने ज़माने में जो lawn mowers यूज़ होते थे उसको Sith बोलते थे. तो वो जो फार्मर, उसका जो Sith था, उससे वो काम कर रहा था. और ये जो साउंड आ रहा था, एक पर्टिकुलर जो साउंड आ रहा था, उसके वो Sith से, उसके लॉन मोवर से, पुराने वाली लॉन मोवर से आ रहा था. The sound was coming from his Sith and it was whispering something to the ground. तो जो उसका जो Sith था, उससे एक हल्की सी कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे वो अर्थ से, ज़मीन से, जो ये ग्राउंड होता है, उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है. What was it? It whispered, I know not well myself. So the Sith, it was whispering something to the ground. वो जो Sith था, वो ग्राउंड से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था. जैसे वो ग्राउंड और वो Sith, वो दोनों फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे से उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था. और ये जो फार्मर है, उसे समझ में नहीं आया कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग. तो डेफिनेटली उसको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा. यहाँ पे जो ये बोला गया है कि जो दोनों बातें कर रहे हैं, इट इज़ सिम्बॉलिकल. वहाँ पे वो एक्चुअल में तो वो बातें कर नहीं रहे हैं, तो इनको पर्सोनिफाई किया गया है जैसे कि वो बातें कर रहे हैं. Perhaps it was something about the heat of the sun. The farmer says that perhaps they were talking about the heat of the sun. ऐसे लग रहा है कि जैसे वो Sith और वो ग्राउंड दोनों बातें कर रहे हैं कि आज देखो धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है और कितनी गर्मी लग रही है. तो फार्मर ये गैस करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये दोनों ये बातें कर रहे हैं. Something perhaps about the lack of sound. So here the farmer is telling that the Sith is a machine, it cannot talk, but it is behaving as if the Sith is talking to the ground. और वो अपनी, उसको कैसा लग रहा है, उसकी वो क्या फील कर रहा है, how is the weather today, like that he is talking to the ground about all the common things. तो ये जो पोएम है, इसमें नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, और जो एक फार्मर है उसके बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाउ द फार्मर, ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ. जो फार्मर है वो अपनी फार्मिंग कर रहा है, वो अपना Sith से, वो अपना जो उसका लैंड है उसको वो काम कर रहा है. एंड द फार्मर, ही इज़ वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ. वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. He is very contented and satisfied with his life, and he is very happy that he has a part of land and he is working in that land. And that was why it whispered and did not speak. So the machine was old. That is why वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे वो आवाज़ कर रहा था.
It was no dream of the gift of idle hours. So the Sith says, जो mower है, जो old land mower है, वो बोल रहा है, says that I don't want to sit idle. तो वो जो लैंड मोवर है जो फार्मर के पास, वो बोल रहा है मुझे दिन भर बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे काम करना बहुत पसंद है. माई ड्रीम इज़ टू वर्क एंड आई लव टू वर्क, आई डोंट वांट टू सिट आइडल. तो ये सिर्फ जो ये लैंड मोवर है उसे काम करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. उसका जो लॉन मोवर है उसे सिट है, उसे काम करना बहुत पसंद है. फार्मर के साथ वो दिन भर अपने फील्ड में काम करना चाहता है और वो अपना काम करना चाहता है. उसे बैठे रहना, जैसे आइडली कोई बैठा रहता है बेकार में बिना कुछ काम के, उसको ये सब कुछ पसंद नहीं है. और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फ्री और एल्फ. सो जो ये सिथ है वो कह रहा है आई एम नॉट दैट पर्सन, कि वो सिर्फ बोल रहा है कि मैं ऐसा कोई नहीं बनना चाहता जिसे एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिल गई है, कोई ओशन के नीचे से कोई ट्रेजर मिल गया है, या फिर अर्थ के नीचे से जो एक गड़ा हुआ ट्रेजर मिल गया है, और कोई एल्फ मीन्स अ फेरी, या फेरी ने कोई उसे गिफ्ट दे दिया हो, बहुत अच्छा सा ज्वेल्स का हो या गोल्ड का हो. ऐसा चीज़ मुझे नहीं चाहिए. मुझे ये सरप्राइजेज और ये सब कुछ नहीं चाहिए. मुझे काम करना बहुत पसंद है और उसी से ही मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ. तो वो यही कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मैं काम करता रहूँ और उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलता है. एनीथिंग मोर देन ट्रुथ वुड हैव सीम्ड टू वीक. So this Sith is he's weak to work, but still then he wants to work. वो जो मशीन है वो थोड़ा पुराना हो चुका है, but still then उसे आइडली नहीं बैठना है और उसे काम करते रहना है. To the earnest love that laid the swale in rows, not without feeble pointed spike to flowers. The Sith is the machine is old. वो थोड़ा पुराना हो चुका है, बट स्टिल देन उसे काम करते रहना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. और जो रोज़ मीन जो फार्मर्स जो लैंड में जो रोज़ बनाते हैं, जिसमें वो अपने प्लांट्स उगाते हैं, तो उन रोज़ के बीच में जब वो घास बड़ी हो जाती है तो इस मशीन को उसके बीच में जाके वो घास काटना उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है. Not without feeble pointed spike to flowers. So the Sith is telling that I do not cut flowers. मैं फूल नहीं काटता हूँ. मैं क्या काटता हूँ? जो अनवांटेड जो ग्रास हैं, जो प्लांट्स में जो अनवांटेड चीज़ें जो उग जाती हैं, मुझे वो सब काटना मुझे बहुत पसंद है. Pale orchids and scared of bright green snakes. So the Sith is telling that sometimes I frighten a green snake. You must have seen in the farms or in the countryside, in the field, वहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड में स्नेक्स भी कभी कभार घूमते हैं. तो जब ये सिथ चलती है तो उसके साउंड से जो वो ग्रीन कलर्ड के स्नेक्स होते हैं वो भी डर के भाग जाते हैं. ये जब चलती है तो इसकी आवाज़ से वो स्नेक भी वहाँ से भाग जाते हैं. वो वही कह रहा है कि आई समटाइम्स स्केयर द ग्रीन कलर स्नेक्स. जो वो स्नेक्स होते हैं इसकी आवाज़ सुन के वहाँ से चले जाते हैं. द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज. So here the Sith is telling that as a labor gets money after working the whole day, जैसे कोई वर्कर जो मज़दूर होते हैं वो दिन भर काम करते हैं और उसके बाद उनको पैसे मिलते हैं, तो उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे वो सेटिस्फाई होते हैं, उसी तरह दिन भर काम करने के बाद मुझे वही सेटिस्फैक्शन मिलता है. दैट आई वॉज नॉट सिटिंग आइडल एंड आई वॉज वर्किंग. तो मुझे भी वही सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड आई फील वेरी हैप्पी. My long Sith whispered and left it hay to make. So again the long Sith, it's whispering कि उसे कितना सारा काम करना है और hay है उसे वो काटना है. So this is the end of the poem. और जो ये पूरा पोएम है ये नेचर के बारे में है, जहाँ एक फार्मर अपने लैंड से बातें कर रहा है, उसके जो मशीन्स हैं उससे बातें कर रहा है. एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम दैट द फार्मर ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ. वो अपने काम से बहुत ही ज़्यादा खुश है. वो नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो अपने फार्म में अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है उस जगह में. उसकी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं हैं. ही इज़ हैप्पी विद हिज लैंड एंड ही इज़ वर्किंग दैट एंड ही इज़ कंटेंटेड विद हिज लाइफ. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.